Good evening. Today, the Rotary Optimus Studio is very privileged to have with us a multifaceted personality. May I welcome Sri Dabu Malik to our Optimus Studio. Aye, Dabu ji. Kalaji, thank you very much for making me feel so important. And I'm also very happy talking to you. So this is Dabu ji, who's a composer, who's an actor, who's a mentor to many singers. And can you please tell us something about your journey of music? See, the thing was that I always, as a young person, wanted to, as every youngster who thinks and looks himself in the mirror, thinks, oh, I'm so good looking and I should do acting and all that. I had this dream to be an actor, and I was fairly successful. I did Mahabharat in 1987. That's how I started. Then I did Lal Dupatta Malmal Ka, Bazigar, Tiranga, Beta Ho To Aisa, bunch of RK films and all. I managed to do a lot of work as an actor. But one thing which I always noticed, that in my free time, and whenever I was sitting down with friends, it was always music which became a center of things for me. I used to keep on writing lyrics, मुखड़ा लिखता था, गाने गाता था, गुनगुनाते रहता था कि जो मुझे परंपरा में मिला मेरे पिताजी से और मेरे ब्रदर के साथ जो मैंने काम किया, तो हमेशा संगीत तो जुड़ा ही रहा मेरे साथ. कहीं एक ऐसी फीलिंग मुझे आ गई जैसे समय निकला, बिकॉज आई डिड नॉट मेक अ वेरी बिग डेंट एज एन एक्टर एंड आई गॉट रियली बोर्ड. मतलब ये 8-8 घंटे बैठे हैं. और एक्चुअली देखा जाए ना तो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी ऑफ लता जी यूज्ड टू वर्क एज एन एक्ट्रेस, एज अ चाइल्ड एक्टर, इवन एन एक्ट्रेस. तो उनकी किसी इंटरव्यू को मैंने देखा तो मैं बड़ा इंस्पायर होना पड़ा कि ये मेकअप करके 8-8 घंटे बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. इट वॉज मानो कि डेस्टिनी ने मुझे एक आंसर दिया और मुझे लगा कि यार ये तो मुझे भी लगता है ऐसा. ये भी है कि सक्सेस नहीं मिली उस तरह की जो सक्सेस मिलनी चाहिए, और एक जवाब भी कॉस्मिक पावर से मुझे मिला कि शायद ये मेरी दुनिया नहीं है. और संगीत को मैंने अपनाना धीरे धीरे शुरू किया, एंड रेस्ट एज यू से इज हिस्ट्री. So that is what here you have said that actor से संगीत को, एक्टिंग से संगीत में आपका जो स्विच ओवर आपने किया, हाउ इजी इट वाज फॉर यू द मोल्डिंग इनटू दैट एज अ सिंगर. सो बेसिकली एक कहानी है ये, और वो कहानी ऐसी है कि हमारे पिताजी जो थे वो कभी हमें संगीत की दुनिया में डालना ही नहीं चाहते थे. उन्होंने पूरा जीवन संगीत को दिया, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो हम तीनों पे ये एक बहुत बड़ा पहाड़ था कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एजुकेशन, you are going to study well in the best of colleges, and once you graduate you will take up jobs and you are not going to learn music. और उन्होंने जानबूझ के हमें संगीत सिखाया ही नहीं. तीनों बच्चों को, अन्नू जी को, मुझे, मेरे ब्रदर को, हम लोग कभी संगीत सीखे नहीं, बिकॉज वो चाहते नहीं थे कि हम इस गली में जाएं. एंड ऐसे वक्त ने और कॉस्मिक पावर्स ने हमें ऐसा घेरा कि मुझे हमें ऐसा लगता था कि दिन भर हम बस जुड़े रहें संगीत के साथ. पंचम दा की रिकॉर्डिंग या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की रिकॉर्डिंग, किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं. तो जितना वो हमें दूर ले गए उतने ही हम उस संगीत के करीब चले गए. एंड धीरे 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 वी एक्चुअली मेड दिस इनटू अ करियर, एंड वी मेड आवर फादर प्राउड, and the next generation also went into it. So I think the legacy continues. It's all God's blessings. About Dabu Malik, the composer. The thing is, it started with Zindagi Ka Safar, which was a Mahesh Bhatt film directed by Tanuja Chandra. And the moment I went into the studio and I sang few songs, the legend like Mahesh Bhatt looked at me and said, "Young boy, you are exceptionally talented. And this is a very serious film which you're getting as a break. And I hope you can do justice, because whatever songs you're singing, I can't believe a non-musician is actually singing these songs and writing the mukhras and singing ideas to the situation. It was just coming to me naturally. Immediately I had a film called मैंने दिल तुझको दिया, जिसका थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी सुपर हिट हुआ. उसके बाद it was a roller coaster ride, and more than 150-160 songs I recorded within a span of 3 years. So I also took into music as if, I was just waiting to be part of it. Dabu ji, can you tell us something about the mentoring for this upcoming singers and the albums that you are being releasing? See, कहीं मुझे एक चीज़ का तो डेफिनेटली ऐसा लगा, मैंने अपने आप को बहुत रोका था. मैं स्टेज पर गाना चाहता था लेकिन मैंने गाया नहीं. मैं अपने आप को सिंगर बनाना चाहता था, लेकिन कंपोज़र केम इन द फोरफ्रंट. लेकिन कहीं मेरे मन में हमेशा से ये था कि अगर मैं गाऊंगा तो मेरे संग में दूसरे सिंगर्स को, या जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, उनको राह तो दिखाऊंगा, उनको रास्ता तो बताऊंगा, उनको बोलूँगा कि दिस इज़ द राइट वे टू वर्क, दिस आर द थिंग्स दैट यू डू. एनीबडी हु कम्स
for help to me, and he wants to become a part of music industry as a composer, as a singer, as a lyrics writer, as a programmer, arranger. तो I think ये पूरा मशहूर हो चुका है पूरी इंडस्ट्री में. There is one shop or stop that you have to go, and that is Dabu Malik. And I'm proud to say, because मैं बिल्कुल किसी एजेंडा के बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के मैं गाइडेंस देता हूँ और लोगों को चाहता हूँ कि वो अचीव करें. लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएं, अपनी अपनी खुद की म्यूज़िक के खुद इंडिपेंडेंट गाने डालें और खुद के गाने कंपोज करें, सिंग करें. व्हाई नॉट? द होल वर्ल्ड इज़ ओपन, एंड इफ़ आई कैन गाइड देम एंड इफ़ माई इक्विटी कैन बी यूज टू बेनिफिट देम, आई एम रेडी. दैट्स रियली वेरी नाइस डब्बू जी. मेरे को ये बताइए, which is your favorite song of all the songs that you have composed? Anything favorite? Yeah, there's one song which I think is very close to my heart, and that is ज़माने में सभी को मिलते हैं गम, तुम न घबराना, यहाँ हर रात की सुबह है हमदम, तुम न घबराना. इस गाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा थॉट है कि एक मेरे दोस्त का बच्चा था जिसका ही वॉज अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स एंड ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, एंड माँ बाप का प्रेशर, पीयर प्रेशर, स्टूडेंट्स का प्रेशर. ये गाने का जन्म उस एक स्टूडेंट की वजह से हुआ था, एंड उसकी घबराहट देख के, उसकी परेशानी देख के मैंने कहीं आइडेंटिफाई किया, एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 दिन डेडिकेट किए उस बच्चे को, और उसको इतना प्रोत्साहित किया, इतना मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया और इतने चीज़ें उसको बताई कि अगर तू फेल भी हो गया ना, तो अगर तेरे माँ बाप तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं सारी ज़िंदगी तेरे साथ हूँ. उसको इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि उसने 3 रातों में उस सब्जेक्ट को ओवरपावर किया, एंड ही केम अप एंड ही इज़ मैनेज टू गेट 70%. एंड उस दौरान ये गाने मैंने खुद ही ऐसे नेचुरल तरीके से बनाया था, जैसे मैं आपकी आंखों के ऊपर अभी गाना बना सकता हूँ, वैसे मैंने उसके दर्द पे एक गाना बनाया था. एंड दैट बॉय आई स्टिल रिमेंबर, एंड ही इज़ डूइंग सो वेल इन लाइफ. तो कभी कभी ना एक थोड़े से शब्द, अच्छे शब्द, किसी के लिए जीवन लोग करोड़ों अरबों रुपए बना सकते हैं, लेकिन आप क्या किसी की ज़िंदगी में छोटा सा चेंज ला सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है. Dabu ji, have you heard about Rotary? Yes, I have heard about Rotary, and I think Rotary का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा contribution है for the eradication of polio, and I think the way these people have put all the efforts behind this and all the energies behind this, it is a great thing, and that is what I would also propagate, that everybody should back Rotary and support the cause, and we should all work towards eradicating polio. Thank you so much, Dabu ji. Dabu ji, एक फिल्म का कोई डायलॉग बोल सकते हैं आप? आपका एक जो आपको याद है, या महाभारत का कोई डायलॉग? Oh, महाभारत, that is fantastic. Nice. शत्रु को मृत्यु दंड देने से शत्रुता की मृत्यु नहीं होती महाराज, उसकी आयु तो हर मृत्यु के बाद बढ़ जाती है. यदि हम भारतवर्ष को एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं तो हमें शत्रुता से जूझने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि मित्रता ही एक सुंदर, शांत, प्रगतिशील और उज्जवल भविष्य की आधारशिला हो सकती है. अभी आप इसको बाहर करिए और कोशिश करिए बोलने के लिए. Thank you so much, Dabu ji, for gracing our studio. We wish you and MWM Productions all the best. And good luck to Rotary. And may you all do the great work that you're doing and continue doing that. Thank you.